हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 8th एसएसटी के मिड टर्म का सैम्पल पेपर। टाइम है 2.5 घंटे एंड मैक्सिमम मार्क्स है 60। ये सैम्पल पेपर 6 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस इज कॉल्ड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए fundamental rights, option B universal adult suffrage, option C directive principles, option D parliamentary system of governments. Option A is the correct option, fundamental rights. Second question is Deepak is being prevented from giving a speech. Tell me which fundamental right of Deepak is being violated. Option A right to constitutional remedies, option B right to freedom, option C right to equality, option D right against exploitation. Option B right to freedom is the right answer. Question 3 is which of the following countries is secular, and option D is a right answer. Question 4 is when was the Government of India Act passed? Option A 1885, option B 1909, option C 1929, option D 1947. आंसर है ऑप्शन बी 1909. Question 5th is two statements are given below, statement 1 and statement 2. Read both the statements and choose the correct option. Statement 1, water is renewable resource. Statement 2, most of the water on earth is saline. So correct option है option A. Both statement 1 and 2 are correct. Question 6 is identify the correct match. Option A primary activity fishing, option B primary activity banking, option C primary activity insurance, option D primary activity trade. Option A is the correct option. Question 7th is which of the following countries is leading in rice production. Option A China, option B Brazil, option C Japan, option D India, and option A China is the right option. Question 7th, Tanzania is a part of which continent? Option A Africa, option B Australia, option C Europe, option D Asia. Option A Africa is the right option. And question 9th is which of the following method is most suitable for preventing soil erosion on steep slopes? A Vedic farm, B contour ploughing, C protector belt, D rock dam. C contour ploughing is the right option. Question 10 is identify the odd one out. A petroleum, B coal, C solar energy, D natural gas. Option C solar energy is the right option. And अब question 7. Question 11. Two statements are given below, assertion and reason. Read the statements and choose the correct option. Assertion. James Mill divided Indian history into 3 categories: Hindu, Muslim and Christian. Reason. Government documents help us understand what common people think. Option A, both assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation of assertion. Option B, both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of assertion. Option C, assertion is correct and reason is incorrect. Option D, assertion is incorrect and reason is correct. So the right answer is option D. Assertion is incorrect and reason is correct. Question 12 is fill in the blanks with the help of suitable option. The first English factory was started in 1651 on the banks of the river. Option A Ganga, option B Jamuna, option C Hooghly, and option D Brahmaputra. So option C is the right option, Hooghly.
Question 13th. In which year Siraj ud Dola became the Nawab of Bengal? Option A 1756, option B 1766, option C 1777 and option D 1787. 1756 option A is the correct answer. 14th question is the Champaran movement was against which agriculture? Option A indigo, B potato, C wheat and D option is rice. So the correct option is A indigo. 15th question is who among the following was called Sher-e-Mysore? A Alivardi Khan, B Hyder Ali, C Tipu Sultan, D मीर जाफर. ऑप्शन सी टीपू सुल्तान इज द राइट आंसर. अब हम आ चुके हैं सेक्शन बी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पे. सो सेकंड क्वेश्चन है ए पार्ट. व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द लास्ट बैटल ऑफ श्रीरंगापट्टनम? यानी कि श्रीरंगापट्टनम में जो लास्ट बैटल हुई थी उसके रिजल्ट्स क्या थे? सो ये बैटल हुई थी टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिशर्स के बीच में एंड ये इसका आंसर है. द रिजल्ट ऑफ द लास्ट बैटल ऑफ श्रीरंगापट्टनम इज टीपू सुल्तान वर डाइड इन दिस बैटल. द ब्रिटिशर्स won the battle and captured Mysore. And part B, what was the result of the third Anglo-Maratha war? जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी मराठा और ब्रिटिशर्स के बीच में उसके क्या रिजल्ट थे? सो ये उसका आंसर है. द रिजल्ट ऑफ द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर इज ब्रिटिश फुली क्रश्ड द मराठा वॉर. ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड द मोस्ट एरिया ऑफ इंडिया. अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन थर्ड पे. Question third is mention any two functions of the judiciary. Judiciary के कोई भी दो function mention करना है. So this is the answer. Judiciary protects the fundamental rights. Judiciary dispute resolution. Question 4 का A part is mention any two features of the Indian Constitution. हमें कोई भी दो features मेंशन करने हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के एंड द आंसर इज दिस. द टू फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस फेडरल सिस्टम. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव फंडामेंटल राइट्स टू एवरी सिटीजन. एंड क्वेश्चन 4 का बी पार्ट है राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो होता है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? सो इसका आंसर है ये. इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज इट इंश्योर्स दैट एवरी सिटीजन अबव 18 years हैज़ एन इक्वल राइट टू वोट. इट सेज दैट एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर लॉ. क्वेश्चन 5th इज एक्सप्लेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सो बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो सेव द रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब हम आ चुके हैं सेक्शन सी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पे. सो क्वेश्चन 6th है. क्वेश्चन 6 का ए पार्ट सजेस्ट एनी टू मेजर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. हमें कोई भी दो मेजर्स बताने हैं डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए. सो ये रहा आंसर. टू मेजर्स फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट आर यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स. अच्छे टाइप के हमें सीड्स यूज़ करने चाहिए. एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक. हमें जो मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक है उन्हें अडेप्ट करना चाहिए उन्हें यूज़ करना चाहिए. अब क्वेश्चन 6 का बी पार्ट है डिस्क्राइब हाउ एग्रीकल्चर इज़ डन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अमेरिका में एग्रीकल्चर कैसे होता है? सो ये इसका आंसर है.
Agriculture in the USA is highly mechanized with large-scale farming. A typical farm size in the USA is about 20 to 50 hectares. एग्रीकल्चर जो यूएसए में होता है वो बहुत ही हाईली मैकेनाइज्ड तरीके से होता है और मतलब वहाँ पे कोई भी छोटी ज़मीन नहीं होती, वहाँ पे मिनिमम 250 हेक्टेयर्स में फार्मिंग की जाती है। अब क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन 7 का ए पार्ट, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट के कोई भी 2 फंक्शंस बताने हैं। द फंक्शन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, मेकिंग लॉज, वो लॉज बनाती है, कानून बनाती है। चेकिंग द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को चेक करती है और ठीक से काम कर रही है या नहीं। डिस्कसिंग इम्पोर्टेंट इश्यूज, इम्पोर्टेंट इश्यूज पे बात करती है। क्वेश्चन 7 का बी पार्ट इज एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स हाउ लॉज आर मेड इन इंडिया। इंडिया में लॉज कैसे बनते हैं? द आंसर इज दिस, laws in India are made by the parliament through bills passed in both houses, Lok Sabha and Rajya Sabha, and assented by the president. इंडिया की पार्लियामेंट में लॉज बनते हैं कि पहले बिल पास होता है दोनों हाउसेस से, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, और उसके बाद प्रेसिडेंट से, जब जाके कोई भी बिल पास होता है। अब हम आ चुके हैं सेक्शन डी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 8 का ए पार्ट है, एनालाइज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन विद एग्जाम्पल्स। ये इसका आंसर है, PIL is a legal tool that allows citizens or organizations to approach the court for the public's benefit. It helps protect fundamental rights and promote justice. PIL allows people to seek justice for the greater good, ensuring that the government and others act in the public's interest. Example है इसका, petitions for the right of marginalized communities, cases against pollution in rivers or destructions of forest. अब क्वेश्चन 8 का बी पार्ट है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी की क्या इम्पोर्टेंस होती है, हमें वो एक्सप्लेन करनी है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस जुडिशरी इज कंट्रोल बाय पॉलिटिशियंस स्टॉप जस्टिस फ्रॉम मेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजंस। जो ये पॉलिटिशियंस होते हैं, कई बार क्या होता है कि फैसला उनके फेवर में चला जाता है, लेकिन इंडिपेंडेंट जुडिशरी ये नहीं होने देती। प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। चेक्स एंड बैलेंसेस, ये हर चीज़ को चेक करती है, बैलेंस करती है। प्रमोट्स रूल ऑफ लॉ, लॉ के रूल को प्रमोट करती है। प्रिवेंट्स टायरनी, कुछ भी गलत नहीं होने देती। क्वेश्चन 9 इज सजेस्ट एनी 5 मेजर्स फॉर वाटर कंजर्वेशन। हमें कोई भी 5 मेजर्स बताने हैं वाटर कंजर्वेशन के। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर को हार्वेस्ट करना चाहिए। रिड्यूसिंग वाटर वेस्ट, वाटर का वेस्ट कम करना चाहिए। एफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक, इरिगेशन टेक्निक को हमें सही से यूज़ करना चाहिए। वाटर रिसाइकलिंग, वाटर को रिसाइकल करना चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस ऑन वाटर सेविंग्स, पब्लिक को अवेयर करना चाहिए वाटर सेविंग के लिए। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन ई, केस बेस्ड स्टडी। सो क्वेश्चन 10, इसका ये पैराग्राफ आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। मैं आंसर्स बता देती हूँ। सो 10.1 क्वेश्चन इज मेंशन एनी वन टाइप ऑफ सर्वे। हमें कोई भी एक टाइप की सर्वे बतानी है। सो बोटेनिकल सर्वे। 10.2 क्वेश्चन इज आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स वॉज द सेंसस डिसाइडेड टू बी कंडक्टेड। कितने साल बाद सेंसस कंडक्ट होता था? सो आंसर इज 10 ईयर्स। 10.3 question is why did the British government conduct surveys of different regions of the country? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर्वे क्यों किए थे अलग अलग जगह के?
Answer is to gather information for administration, know topography, soil quality, flora, fauna and other facts necessary to administer the region. अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन 11 पे। सो ये पैराग्राफ भी आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। सो 11.1 इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ कंसेंट, डिजायर, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। 11.2 क्वेश्चन इज What is the basic idea behind democracy? डेमोक्रेसी के पीछे बेसिक आइडिया क्या था? The basic idea in this kind of democracy is that the individual or citizen is the most important person. 11.3 question is the idea of consensus is the starting point of democracy. Explain this statement. The starting point of democracy is the idea of consent and emphasizing the importance of people's decision in creating and functioning of a democratic government. Question 12 ये भी पैराग्राफ वाला है, इसे भी आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो मैं इसके आंसर बता देती हूँ। 12.1 व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्स। सो इसका आंसर है रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। सम आर अनलिमिटेड एंड नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होती है जो कि कभी ख़त्म नहीं होती या फिर रिन्यू होती रहती हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज से अफेक्ट नहीं होती। 12.2 क्वेश्चन इज गिव वन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। सो इसका एग्जांपल है सोलर एनर्जी। 12.3 क्वेश्चन इज वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स बट व्हाई इज देयर अ शॉर्टेज ऑफ इट इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है पर फिर भी दुनिया में कई जगह इसकी शॉर्टेज क्यों है? वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल बॉडी सोर्स इज अ मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन 13 पे। 13.1 हु ग्रांटेड द ट्रेड चार्टर टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। सो ये चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने दिया था? क्वीन एलिजाबेथ ने। 13.2 क्वेश्चन इज थ्रू द ट्रेड चार्टर ओवर विच रीजन डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी गेट मोनोपोली ऑफ ट्रेड। इसका आंसर है ईस्ट। 13.3 क्वेश्चन इज व्हाट बेनिफिट डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी गेट फ्रॉम द ट्रेड चार्टर इन कंडक्टिंग trade? The benefits are no other trading group in England could compete with the East India Company. The company could buy goods at cheap price and sell them back in Europe at higher price. अब हम पहुंच गए हैं सेक्शन F पे, मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चंस। On the given political outline map of India, locate and label the following places with appropriate symbol. Attempt any 5. इनमें से हमें किसी भी 5 को मैप में फिल करना है। फर्स्ट इज सूरत। सूरत है गुजरात में, यहाँ पे। हैदराबाद यहाँ पे है। बक्सर है यहाँ पे बिहार में। लखनऊ है यहाँ पे यूपी में। एंड पुणे है मुंबई के नीचे यहाँ पे। फॉलोइंग क्वेश्चंस इज गिवन ओनली फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स इन लीव ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। अटेम्प्ट एनी 5। ये क्वेश्चन विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए हैं, सो हमें ये नहीं करने। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।